Today, we're delving into the fascinating, the unexpected, the shocking military victory of Iran over the Western powers. It all began with a declaration of an attack. Yes, you heard that right. Iran declared its intention to attack a few days prior, writing to the United Nations and presenting all evidence of the impending assault. It was an unusual move, a departure from the typical stealth and surprise that characterizes most attacks. This bold declaration was followed by a show of force. The flight of Iranian drones over Iraq and their movement towards Israel, all captured and disseminated by the media. What followed was a direct military attack on Israeli military sites involving several hundred drones and dozens of missiles. Despite the forewarning, Israel and its military allies, the United States and Britain, were caught off guard. Sure, they retaliated. They claim to have destroyed more than 90% of the drones and missiles, with the rest reportedly falling into the desert, causing no damage to life or property. But here's where it gets interesting. Despite being over 1,000 kilometers away from Israel, Iranian missiles managed to hit sensitive Israeli bases, including the country's largest and most guarded military airfield. Damage was done, so much so that Israel was forced to relocate the president's private sensitive plane post-attack. Equally noteworthy was Iran's ability to bypass the West's premier defensive weapons, the Iron Dome, Patriot and Arrow defenses. In doing so, Iran demonstrated that its missile technology outpaces some of the West's best. An unexpected triumph, wouldn't you say? So what does this victory mean? What does it signify? Well, for one, it's a stark reminder of the changing dynamics of global power. It's a testament to the rise of new military powers in regions previously thought to be dominated by the West. It's a wake-up call that even the most powerful nations aren't invincible. It's also a lesson in strategy and audacity. Iran's victory is a testament to the power of clear intentions, strategic planning, and bold execution. It's a reminder that even in the face of overwhelming odds, victory is possible. ईरान ने ये जो हमला किया, इसके बारे में उसका कहना ये है कि चूंकि डेमस्कस में उसके वाणिज्य दूतावास पर इस्राइल ने हमला किया था और उसमें उसके 7 लोग फौजी जो है वो शहीद हुए थे। उसमें उनका एक कमांडर भी थे, जैदी, और उसके अलावा भी 7-8 लोग जो है वो वहां पे शहीद हुए थे। तो ईरान का कहना तो ये है कि हमने उसको रिटेलिएट किया है, हमने उसका बदला लिया है। लेकिन ये बात कहने की है। दरअसल इस्राइल गजा में जो कुछ कर रहा है और जिस तरह से कि यूनाइटेड नेशन में जो है वो संयुक्त राष्ट्र में अलग-अलग उसमें जब जनरल असेंबली में भी सारे मुल्कों ने ये कहा कि भाई ये युद्ध विराम होना चाहिए। उसके बाद में सुरक्षा परिषद में भी ये बात पास हो गई, लेकिन इसके बावजूद जंग बंदी नहीं हुई। और जैसा कि अभी बताया गया 33,000 से ज्यादा लोग, जिसमें 14,000 से ज्यादा औरतें हैं और बच्चे हैं, उनको जो है वो इस्राइल ने वहां पर मार दिया। तो ये जो सिलसिला है, इसको कोई रोक ही नहीं रहा था। और घूम फिर के कभी-कभी अमेरिका ये कहता था कि भाई इस पर कुछ रुकावट, आप थोड़ा बंदी करो, थोड़ा संयम रखो, लेकिन फिर उसका समर्थन भी करता था। तो इस्राइल ने एक गलती की दमिश्क में, जो ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया और ईरान को एक मौका दिया कि वो उसको बदला ले और वो उसको जस्टिफाई करे। तो ये हमला दरअसल ये कहता है कि आपकी जो लिमिट है, आपकी जो हद है, वो खत्म हो गई है और अब अगला हमला हम गजा के लोगों को बचाने के लिए करेंगे। आप ये देखें कि इसके बाद जो रिएक्शन आया वो क्या है। इस्राइल ने तो ये कह दिया कि हमने जो है वो सारे मिसाइल को रास्ते में गिरा दिया। लेकिन ये कि अंदर की खबरें आ रही है कि इस्राइल में जो है वो उनके एक एयर बेस पर जो है वो मिसाइल गिरा है और उसमें बहुत सारे लोग, 44 लोग फौजी जो है वो मारे गए। इन दोनों हमले में जो ईरान ने किया और जो इस्राइल कर रहा है, इसमें फर्क ये है कि इस्राइल ने जो है वो आम लोगों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उसने जो है वो फौजी ठिकानों को निशाना बनाया।
इसके मुकाबले इस्राइल जो कुछ कर रहा है वो ये है कि अस्पताल तोड़ देता है, वो स्कूल तोड़ देता है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ देता है, औरतों को और बच्चों को जो है वो निशाना बनाया जाता है। तो ये एक क्लियर फ़र्क है। और जैसा कि अभी बताया गया कि रूस ने ये कहा है कि अगर इस्राइल की जो है वो समर्थन में अ, अमेरिका और यूरोप के दूसरे देश आएँगे, तो फिर वो भी ईरान के साथ आएगा। और हमने देखा कि सबसे पहला रिएक्शन जो अमेरिका की तरफ से आया इस्राइल के लिए वो ये था कि वो जो है इसका बदला इसके रिटेलिएट ना करे, वो जो है वो खामोश रहे। तो इससे ये बात समझ में आती है कि ये जो देश हैं इनको प्यार की भाषा नहीं समझ में आती। पार्ले यूनाइटेड नेशन के रिज़ॉल्यूशन समझ में नहीं आते। लेकिन इनको जो है वो ताकत की ज़बान ही समझ में आती है। तो ये बात जो है वो इस हमले से साबित हुई। इससे ये भी साबित हुआ कि ये जो हमला किया गया, ये दूसरे अरब देशों सऊदी अरब और तुर्की वग़ैरह को ईरान ने बता दिया था कि ये हमला होने वाला है और उन सब लोगों का मूक समर्थन उसको शामिल था। इसके बाद आप ये देखें कि कुवैत में और कतर में अमेरिका के जो है वो बेस हैं, फौजी अड्डे हैं। तो उन दोनों कंट्रीज़ ने ये कहा कि आपको हम जो है वो इस्राइल की हिमायत में या ईरान के खिलाफ ये फौजी अड्डा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमारी धरती से जो है आप इस्राइल का समर्थन या ईरान के खिलाफ जंग नहीं कर सकते। तो ये भी एक बड़ी बात है जो कि अभी डेवलप हो रही है। 6 महीना इस युद्ध को हो चुका है इसके बावजूद। हमारे देश के अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें, तो आप ये देखिए कि अभी भारत की सरकार ने जो है वो वो जारी किया और लोगों से कहा कि वो इस्राइल में ना जाएँ, भारतवासी ना जाएँ। और एयर इंडिया ने तल अवीव की अपनी फ्लाइट भी कैंसल कर दी। लेकिन जब ये चीज़ शुरू हुई, जब ये जंग शुरू हुई, तो उस वक़्त इस्राइल को अचानक जो है वो मज़दूरों की कमी पड़ गई और हमारे यहाँ से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से लोग जो है रिक्रूट होके जाने लगे और 6,000 भारतीय नागरिक वहाँ पर गए। इससे एक तो ये कि जंग के ज़माने में यूक्रेन से हम अपने लोगों को लेके आए और इस्राइल में हमने अपने लोगों को भेजा। ये कितनी खतरनाक बात है। यानी कि भई सरकार को चाहिए था कि वो ऐसे मौके पर इस रिक्रूटमेंट को बंद करती कि भई जंग के इलाके में आप मत जाइए। लेकिन ये कि सरकार ने इसको प्रोत्साहित किया और उससे भी खतरनाक बात ये है कि हमारे देश में बेरोज़गारी की परिस्थिति इतनी खराब है कि जंग के इलाके में भी लोग जो है वो रोज़गार के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी जो है वो कितनी बढ़ चुकी है। 1-2 बात और मैं करना चाहता हूँ। इस हफ्ते जो है वो एक बहुत प्रतिष्ठित संगठन है सीएसडीएस। उसने एक सर्वेक्षण किया और उसने भी बताया कि जब उसने जनता से पूछा कि भाई सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस चुनाव के सिलसिले में आप क्या सोचते हैं? तो 27% लोगों ने कहा कि बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है। और क्यों ना हो, 83% जो युवक हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमको जो है वो सही नौकरी नहीं मिल रही है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो महँगाई है। तो अ, जनता की जो समस्या है, वो तो बेरोज़गारी और महँगाई है और हमारे प्रधानमंत्री कुछ और ही हाँकते रहते हैं, बीजेपी किसी और ही दुनिया में बनी रहती है। इसके मुकाबले आप देखें कि विपक्ष की जो पार्टियाँ हैं, इंडिया गठबंधन जो है, वो बेरोज़गारी और महँगाई पर बात करता है। इसीलिए जैसा कि अभी तिवारी साहब बता रहे थे कि लोग जो है वो इंडिया गठबंधन के प्रोग्राम में उसके जलसे जुलूस में आते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी समस्याओं की बात होती है और बीजेपी के उसमें नहीं जाते, इसलिए कि वहाँ ऊट-पटांग बातें होती हैं। मोदी जी विकास के बारे में बहुत कहते हैं, तो विकास का मामला भी जो है वो ते तीसरे नंबर पर है सीएसडी के मुताबिक, 13% लोग उसको अहमियत देते हैं। राम मंदिर, जिस पर जो है वो बीजेपी इलेक्शन जीतना चाहती थी, वो 8% पे उतर गया है। और आप ये देखें
कि मोदी कहते थे कि भाई पूरे विश्व स्तर पर भारत की छवि बहुत बढ़ गई है, तो उसको 2% लोग जो है वो महत्व देते हैं। हिंदुत्व के भी समर्थक 2 ही प्रतिशत लोग हैं। आरक्षण के बारे में भी 2 ही लोगों प्रतिशत लोगों को दिलचस्पी है। और इस सीएसडीएस सर्वे में ये बात भी निकल के आई कि देश के क्या केवल 11% लोग ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है। इसके अलावा 79% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये देश किसी एक समुदाय का नहीं है, बल्कि ये देश जो है वो सभी लोगों का है। और 10% तो ऐसे लोग हैं जिनको ये मालूम ही नहीं कि ये देश किसका है। तो ये बात बताती है कि ये देश का जो जनमानस है, वो क्या सोचता है और बीजेपी उनको जो चीज़ पढ़ाना चाहती है, उसका जो है, उस पर कोई ख़ास असर नहीं हो रहा है। आखिर में मैं ये जो चुनाव पत्र है, बीजेपी का जिसको संकल्प पत्र कहा गया है, इसके बारे में 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ये भाजपा का जो है वो संकल्प पत्र नहीं है। ये नरेंद्र मोदी का संकल्प पत्र है। इसलिए कि इस संकल्प पत्र में 65 बार नरेंद्र मोदी शब्द आया है। आप सोचें कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था, तो उनका नाम केवल 3 बार आया था और फिर 2019 में वो 10 गुना बढ़ गया और 32 बार हो गया और 2024 में वो दुगुना हो गया और 65 बार हो गया। तो पूरी पार्टी को जो है वो उसमें व्यक्ति पूजा का जो मामला है वो बना दिया गया। एक ज़माने में बीजेपी कहती थी कि हम कैडर बेस्ड पार्टी है, तो अब वो मामला जो है वो खत्म हो गया है। भ्रष्टाचार के बारे में आप देखें कि 2009 के जो संकल्प में 48 बार उसका ज़िक्र किया गया था, लेकिन अब 2024 में केवल 3 बार। इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार के बारे में बीजेपी को कोई ख़ास दिलचस्पी अभी इसमें नहीं है, अपने घोषणा पत्र में नहीं है, बल्कि वो केवल जो है वो भाषण में और अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए मोदी जी जो है वो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार करते रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया, 59 बार उसका ज़िक्र किया गया क्योंकि उसके ठेके में जो है वो रिश्वत बहुत मिलती है। विकास में भी बीजेपी की दिलचस्पी कम हुई है। 248 बार 2009 में विकास की बात थी, अब केवल 51 बार है। अर्थव्यवस्था में भी पहले 156 बार 2009 में उसका ज़िक्र था, अब केवल 10 बार है। इसलिए वो जो 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी है, उसका मामला खत्म हो चुका है। राम मंदिर का मामला भी केवल 2 बार जो है इस घोषणा पत्र में आया है। इस घोषणा पत्र में बीजेपी न केवल कश्मीरी पंडितों को भूल गई, बल्कि गाय का भी जो है वो कोई उल्लेख नहीं मिलता है। महँगाई जैसी समस्या जिससे कि लोग परेशान हैं, उसका उल्लेख केवल 1 बार किया गया है। और शिक्षा पे भी आप देखें कि मोदी जी ने कहा कि भाई हमने जो है वो अम्बेडकर जयंती के दिन अपना घोषणा पत्र जारी किया। लेकिन इस पूरे घोषणा पत्र में संविधान का ज़िक्र केवल 3 बार किया गया, जबकि 2009 में जो है वो 78 बार जो है वो संविधान का ज़िक्र किया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सीएए, एनआरसी का ज़िक्र हुआ कि सीएए की घोषणा हो गई, लेकिन ये कि उसको 2014 से आगे बढ़ाया जा सकता था। इसी तरह से एनआरसी को बीजेपी भूल गई, अकल का काम किया। लेकिन आप देखें कि गंगा को भी बीजेपी भूल गई। मोदी जी ने कहा था कि गंगा मैया ने मुझको बुलाया है, इसलिए मैं बनारस आया हूँ। और फिर गंगा को जो है गंगा सफाई योजना पर बहुत सारा पैसा भी खर्च किया गया। उमा भारती उसकी मंत्री बनाई गई। लेकिन गंगा का हाल ये है कि शुरू का जो हिस्सा है, उत्तराखंड का उससे बाहर आए तो उसका पानी जो है वो नहाने लायक और पीने लायक नहीं रहा। तो इस तरह से बीजेपी जो है वो अपने पुराने वादों को भूलती जा रही है। 5 ट्रिलियन का ज़िक्र नहीं है, बल्कि इस घोषणा पत्र में 400 पार का भी ज़िक्र नहीं है। इसका मतलब है कि बीजेपी का विश्वास जो है वो 400 पार से उठ गया है। तो ये जो घोषणा पत्र है, ये बताता है कि बीजेपी अंदर ही अंदर कितनी जो है उसका आत्मविश्वास कमज़ोर हो गया है, कितनी कमज़ोर हो गई है और वो जो कुछ लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है उसके नतीजे में ऐसा हो रहा है। तो अगर यही सिलसिला जारी रहा, तो ये जो लंबा सिलसिला मोदी ने रखा था, वो उन्हीं के लिए मुश्किल पैदा करेगा। ये जो इलेक्शन 10 दिन में हो सकते थे, इसको जो 70 दिन में रखा गया,
ये खुद उनको भारी पड़ने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि 4 जून को जो चुनाव आएगा, उसमें जो है वो बहुत सारे नए चमत्कार हमको देखने मिलेंगे। शुक्रिया।